नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कौर बजाज यानी के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। As we say every day, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, good evening, Vanakkam, Shalom, Ni hao in Chinese, Konnichiwa in Japanese, Pradeep ji. Abaru Yako, Jambo to the people in South Africa, East Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And we got viewers, our viewers there. Wow. In Africa. Absolutely lovely. So, polls are finally over. 75-day polls. Polls are finally over. Last day of polling ended today, and whatever are the exit polls that we are seeing, they're more or less confirming what we've been saying all along. Exactly. But anyway, you know, I had never seen the BJP lose in an exit poll, by the way, in a long That's time. what you always said. मतलब हर एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती है साहब। Yes, yes. भले असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन जीते रहे और सारी असेंबली इलेक्शन भी उन्होंने जीती हैं। इनफैक्ट पिछली मरतबा आपको याद होगा दिल्ली की भी जो एग्जिट पोल थी उसमें बीजेपी जीत रही थी। Yes, yes, yes. Where आम आदमी पार्टी came back with 62 out of 70 seats. खैर, in any event, I don't want to make fun of the work of pollsters. Sometimes they have been very deadly accurate. But I wonder what will be the reaction of the India Alliance when they see these numbers, because if the numbers which are coming out in the exit polls actually translate into real results, Pradeep ji, we might have a major problem, because the kind of feedback that we were getting from people, you know, on the street, they may find it very difficult to come to terms with the fact that, hey, listen, this is not what we had voted for. Then what happens? So up till now, what we worried about, you know, places like Karnataka, where the Congress had very strong state leadership. We thought that everybody thought that the Congress will perform very well. But then, as Karnataka has always decided that where state elections are concerned, we are going to vote probably for the Congress, and where the general elections are concerned, they are probably going to vote for the BJP. So they believe the BJP in national affairs Ji. and the Congress in the state affairs. And they'll continue, probably seems to be continuing the trend. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी बाहर मतलब उत्तर में, नॉर्थ में, if they are not doing that well, कहीं जगह पे जहाँ में उनकी मैक्सिमम सीटें आई थी, मतलब 100% आई थी, वो अगर कम हो रही हैं तो बाकी हर जगह पे they are compensating for it in the south. Yes, yes. कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल sir, बिल्कुल, बिल्कुल। Well, anyway, we have, I think, have we got Dr. Sudhir Dhone with us? Dr. Sudhir Dhone's audio is still being checked. But anyway, he's not going to talk. On the... So, general वो trend वही चल रहा है sir, which we thought is going to happen. Kerala, Congress is going to sweep, and we always knew it. Rahul Gandhi seems to be absolutely strong where Kerala is concerned. Then Tamil Nadu, it's one-sided, DMK and the lines. So, as DMK always said that Annamalai cannot create any dent out here. Yes. It's only DMK. तो वो चीज़ एब्सोल्युटली दिख रहा है कि अन्नामलाई वाले भले बहुत मेहनत किया है, तो 1 से 3 सीटें, 2 से 4, लेकिन फिर भी प्रदीप जी 2 या 3 सीट भी अगर उनकी आ जाती है वहाँ पे तो बहुत बड़ी चीज़ है। Yes, उनके लिए। yes. But any event, Dr. Dhone is not going to be talking about the exit polls. He's not going to talk. He's made it very, very clear. बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा कि भाई वो सिर्फ ओवरऑल पॉलिसी की बात करेंगे। तो इस वक्त डॉक्टर ढोने हमारे साथ अकोला से। हाँ सर। डॉक्टर ढोने साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर, कैसे हैं? सर मजे में। तो ढोने साहब ये बताएं कि ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? तो आज तो अब पोल खत्म हो गई सारी की सारी। आपने मुझे कहा है, पहले कहा है आपने कि भाई वो आप माशाल्लाह वो क्या है कि वो एग्जिट पोल जो आ रही है उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि मोदी जी की विदाई तय है, मतलब कि या वापस आ रहे हैं मोदी जी 350 सीट लेके? मोदी जी की विदाई तय है, क्योंकि मोदी जी ने जो 5 चरणों में जो 7 चरण हुए उसमें जो मुद्दे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की है, एक मुद्दा लिया राम मंदिर का, फिर छोड़ दिया,
मेरे पास पूरा चार्ट है सर, जी आपको मैं बता सकता हूँ हाँ, कि बोलिए ना सर। 17 बोलिए सर प्लीज। मोदी जी ने जो है ना 17 मार्च से इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि मोदी जी के जो मुद्दे हैं चले नहीं इन्हें, इसलिए मोदी जी ने बाद के जो फेज है उसमें वो मुद्दे छोड़ दिए। जैसे आपको बताता हूँ, 17 मार्च से 5 अप्रैल में उन्होंने 10 भाषण दिए। हेलो, जी Yes, जी जी yes, सुन रहे हैं सर। हाँ 17 मार्च से 5 अप्रैल के बीच उन्होंने 10 भाषण दिए। उसमें उन्होंने राम मंदिर का उल्लेख 6 बार किया था। जी बाद में 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच उन्होंने 34 भाषण दिए। उसमें राम मंदिर का उन्होंने 26 बार किया, जी उसका उल्लेख 26 बार किया। फिर 21 अप्रैल से 15 मई के बीच में उन्होंने 67 भाषण दिए। उसमें उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लिया नहीं। तो उनको जब लगा कि राम मंदिर का मुद्दा अभी नहीं चल रहा, उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे मुद्दे छोड़े। उन्होंने मोदी की जो गारंटी है ये जी। 7 बार बोले उन्होंने, पहले इसमें 17 मार्च से 5 अप्रैल के बीच 7 बार बोले कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। बाद में 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक उन्होंने वो 28 बार बोले, और फिर 21 अप्रैल से उन्होंने मोदी की गारंटी बंद ही कर दिए। जी एक भी बार नहीं बोले। 67 उनके भाषण रहे, उसमें उन्होंने एक बार भी नहीं बोले कि मोदी की गारंटी। तो राम मंदिर का मुद्दा, मोदी की गारंटी दूसरे चरण में बहुत जोरों से चला। तीसरे चरण में उन्होंने गायब कर दिया। लोगों को लगा कि, उनको लगा, मोदी जी को लगा कि ये मुद्दा नहीं चल रहा। तो उन्होंने कांग्रेस का जो था वो बाद में उनका क्या हुआ, पहले चरण में उनका था 17 मार्च से 5 अप्रैल के बीच उन्होंने 10 बार कांग्रेस का नाम लिया। 10 भाषणों में उन्होंने 10 बार कांग्रेस का नाम लिया। 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच जो है उनके भाषण में कांग्रेस बढ़ गई, 32 हो गई। जी और 21 अप्रैल से 15 मई के बीच उनके 67 भाषण हुए, 67, उसमें कांग्रेस 63 बार आई, 63। तो इसका मतलब पहले वो कांग्रेस का नाम नहीं लेते थे। जी पहले वो विकास विकास, राम मंदिर, मोदी गारंटी, ये विश्व गुरु, ये सब बातें बोलते थे। बाद में उन्होंने वो मुद्दा बदल दिया और अब कांग्रेस पे लग गए। क्यों बोले उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ? पहली बार बोले 10 बार, दूसरी बार 32 बार, तीसरी बार 63 बार। जब उनको लगा कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ जा रहा, अभी लोगों को रोकना चाहिए कांग्रेस की तरफ जाने से, तो उन्होंने 63 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो इस पर से जाहिर होता है कि उनको भी मालूम पड़ गया कि कांग्रेस का लहर उनके सब फेल हो गए थे। अब चैनल का जहाँ तक सवाल है डॉक्टर रोहन साहब, मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने पता नहीं क्यों 10 के 12 साल से बीजेपी को एग्जिट पोल में हारते हुए नहीं देखा है। हाँ एग्जिट पोल में हमेशा बीजेपी जीतती है। हाँ। भले वो कर्नाटका स्टेट का रिजल्ट हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, हमेशा बीजेपी जीतती है। इनफैक्ट पंजाब में भी उन्होंने बीजेपी को जिता दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, मतलब क्या नहीं है? वो तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जी सर। उससे वो एग्जिट पोल से भी बड़ी बात आपको बताता हूँ कि जब वो ये चुनाव चल रहा था बंगाल में, शायद बंगाल बंगाल बिहार में तो बिहार में ये जो चल रहा था टीवी चैनल पे, तो टीवी चैनल के एंकर बता रहे थे कि जो लालू जी के साथ उन्होंने अलायंस किया, नीतीश कुमार जी ने बहुत गलती की है, उसके वजह से वो हार रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। 2017 की बात कर रहे हैं आप? 2017 की बात कर रहे हैं? नहीं 2017 की नहीं बोल रहा मैं, 2022 की बात बोल रहा हूँ जी 2022 की बात बोल रहा हूँ। लेकिन 2022 में तो नीतीश जी बीजेपी के साथ थे ना? कौन? नहीं वे तो बाद में पलट गए वो। वापस बाद में पलट के फिर पलट गए। बीजेपी के पास आए। जी हाँ जी वो पलटू राम इसीलिए तो बोलते उनको पलटते हैं, कभी इधर कभी उधर। सर एक मुहावरा तैयार हो गया अभी, पलटू राम जो झूठ बोलता है, बात पे अड़ा नहीं रहता, पक्का नहीं रहता, उसको पलटू राम बोलते हैं। तो मैंने देखा है सर चैनल पे कि लालू प्रसाद कैसे भ्रष्ट है, उनका लड़का कुछ काम का नहीं, उसके वजह से नीतीश कुमार का नुकसान हो गया। ये जो बातें चली उसमें ऐसा हुआ था कि लालू प्रसाद की पार्टी को, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें थी और नीतीश कुमार को दूसरे नंबर की सीटें थी। और चैनलों पे 12 बजे तक, 12-1 बजे तक भी दिखा दिया था कि भाई बीजेपी आ गई,
बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई, ये चल रहा था। एग्जिट पोल तो बहुत पहले रहता है। जी सुधीर तो जी, उसमें क्या आज है? खड़गे साहब ने क्लियर कट, आज खड़गे साहब के घर में इंडिया अलायंस के टॉप के नेता मिले। खड़गे हाँ। साहब बाहर निकलकर प्रेस को संबोधित करते हुए कि 295 सीट्स, 295 सीट्स, एग्जिट पोल के बात नहीं कर रहा हूं, खड़गे साहब ने जो बोला 295 सीट्स, इंडिया अलायंस के सब नेता ने अपने जो गणित है वो आपस में चर्चा किया और उससे ये निष्कर्ष निकला कि आप 295 सीट्स इंडिया अलायंस को मिलने वाला है, खड़गे साहब ने बोला। और खड़गे साहब ने यह भी कहा कि कल इलेक्शन कमीशन से मीटिंग करके एक मेमोरेंडम देने वाले इलेक्शन कमीशन को। तो ये बोला कि 10 साल अन्याय काल था, 10 साल जनता बेहाल था, खड़गे साहब का कहना। तो खड़गे साहब बहुत मीटिंग के बाद एकदम क्लियर कट और डिफाइंड है, वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। सुधीर जी देखिए ऐसा है, आपको मालूम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस तरह से बात करते हैं, बहुत जिम्मेदार है, बहुत अनुभवी है। और इलेक्शन के बाद ऐसा क्यों बोलेंगे? उनको जो मिला है, इनपुट मिला है, लोगों ने कहा है कि ये सीट जीत सकती, वो सीट जीत सकती। और कांग्रेस के नेता तो कोई ऐसा बताएंगे नहीं उनको झूठ कि भाई नहीं आ रही तो भी वो आ रही, ऐसा बताएंगे। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष उनके सामने ऐसा नहीं बोल सकता जो सीट नहीं आ रही वो भी आ रही, ऐसा बता नहीं सकता। क्योंकि बाद में तो 4 तारीख को तो मालूम ही पड़ने वाला है। तो 3 दिन पहले क्यों झूठ बोलेगा कोई नेता? वो तो बोलेगा नहीं भी ऐसा हुआ। तो उनको जो इनपुट मिला वो सही से इनपुट है, बराबर बोल रहे। 295 सीटें जो बोल रहे 295 उससे ही है, बराबर है, आएंगे उतने। और कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी कहां फेल हो गए, बोले डीमोनेटाइजेशन एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज था, गलत एक्सरसाइज था। मणिपुर लोगों ने मान लिया कि मणिपुर में आप कुछ नहीं किए। मणिपुर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसान आंदोलन, किसान पे कीले, जो रास्ते पे कीले वो आपने बिछाए, किसानों पर लाठीचार्ज, फिर जिस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अडानी स्कैम, ये सब फैक्टर्स है। सुधीर जी, कांग्रेस का कहना है, आपका कहना है ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे बीजेपी के जो डिक्लाइन के लिए। सुधीर जी सही बात है, बिल्कुल। देखिए जनता देखती रहती है, जनता बात नहीं करती, जनता देखती रहती है, अपने मन में रखती है और इलेक्शन के दिन बराबर बटन दबाती है। ऐसे ही होता है, हमेशा देखा है कि लोगों में ऐसा लगता है कुछ नहीं भाई, लोगों का क्या है, अपन बताने में सक्षम नहीं है, यानी फेल हो गए, लेकिन लोग बराबर ध्यान देते हैं और जब मौका आता है तो बराबर दिखाते हैं। इसीलिए तो सरकारें पलटती है ना, आज इसकी वो कल उसकी। ये क्यों होता है? लोग अपने दिल में बात रखते हैं और इलेक्शन के दिन बता देते हैं। तो ये जो अन्याय काल है ये लोगों ने देखा है। और देखिए फिर हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि जो मोदी जी के जो भक्त थे, अंधभक्त, बहुत कम हो गए, अब इतने ताकत से बात नहीं करते। लेकिन एक चीज बताएं सर, धोनी साहब, अगर मान लीजिए कि मोदी जी असल में भारतीय जनता पार्टी के लिए 325 सीट लेकर के आ जाते हैं, तो फिर क्या? अब देखिए जनता का जो है, जनता का आदेश तो किसी को मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा जी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए हो गया तो नहीं, जनता का निर्णय तो फिर मान्य, सबको मान्य है, उसमें हाँ, क्या कर सकते हैं? नहीं, हाल ही में तो हो सकता, हाल ही में किशोर तिवारी जी जो उद्धव ठाकरे सेना के प्रवक्ता हैं और बहुत पुराने, आप जानते हैं उनको, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, किसान लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए लोग जो है मानेंगे नहीं, क्योंकि लोगों का अगर 200-250 के करीब बीजेपी आ भी जाती है तो फिर भी ठीक है, 300 से ऊपर अगर बीजेपी आती है तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। क्या आप ये मानते हैं? नहीं, वो ऐसा बराबर बोल रहे हो कि भाई बीजेपी को 300 सीटें आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता में उनके खिलाफ माहौल है। तिवारी जी जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि जनता में उनके खिलाफ जो माहौल है वो देखते हुए वो बता रहे हैं। सही बात है उनकी कि जनता में बीजेपी के खिलाफ बहुत माहौल था। महाराष्ट्र में तो हमने देखा है उनके खिलाफ बहुत ही माहौल था, यानी उन्होंने जो है शिवसेना को तोड़ा। और उद्धव ठाकरे जो है उनके नेतृत्व में 2014 में जब आमने सामने लड़े बीजेपी और शिवसेना, फिर भी 63 सीटें उनकी आई थी शिवसेना की। तो जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे, वो शिवसेना प्रमुख थे, उनके वक्त भी इतनी सीटें नहीं आई थी, उतनी उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में सीटें आई थी। उन्होंने बता दिया कि उनका नेतृत्व सही नेतृत्व है। तो जैसा बोलते बाप से बेटा सवाई,
वैसे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो बाला साहब ठाकरे से भी वो ज्यादा सीटें लाए। तो फिर भी ये मोदी जी बोलते हैं कि नकली सेना है वो। एक ये लोगों को पसंद आया नहीं। और वो जिन्होंने राष्ट्रवादी की स्थापना की, एनसीपी की, शरद पवार साहब ने 99 में उसकी स्थापना की, फाउंडर प्रेसिडेंट है वो, आज अभी है, जीवित है, उन्होंने प्रचार भी किया। इसके बावजूद भी आज बोलते हैं कि नकली एनसीपी। तो ये लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को मालूम है नकली एनसीपी कौन है, अजित पवार नकली एनसीपी है। और नकली शिवसेना कौन है, एकनाथ शिंदे नकली शिवसेना है। ये लोगों के दिल में था। आप लोगों के दिल में जो भावना है उसके खिलाफ अगर बात करेंगे तो लोगों की नाराजगी आ जाएंगी। तो ये नाराजगी आ गई कि आपने पार्टियों को फोड़ा, तो 50 खोखे बोले, 50 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को दिए। तो ये सब लोगों ने देखा है, लोगों को पसंद नहीं आई ये बात। सुधीर जी, बीजेपी ने रिलीज किया है डाटा, बोले कि 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ हासिल किया है। ये मोदी जी के पॉलिसीज, मोदी जी के फॉरवर्ड थिंकिंग, मोदी जी के इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, आइडियोलॉजीज, इसका नतीजा है कि आज 8.2% जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर पाए। और जेपी नड्डा जी ने कहा कि थर्ड टर्म, हम तो ये टर्म जीत ही रहे हैं, वी आर विनिंग। हम डेवलपमेंट के स्पीड, डेवलपमेंट के स्किल, डेवलपमेंट का स्केल एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, हम प्रतिबद्ध है ना। कैसे आप देखते हो कि ये जीडीपी ग्रोथ 8.2% बोले कि स्टैटिस्टिक्स है, सरकार का स्टैटिस्टिक्स है 23-24 का, और नड्डा साहब का कहना कि नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, मोदी जी जा रहे हैं, हम चुनाव हैट्रिक कर रहे हैं। सुधीर जी, नहीं, जीडीपी निकालने का उनका जो तरीका है ना, उन्होंने गलत तरीके से जीडीपी निकाली है। वो चुनाव के लिए उन्होंने निकाला उस तरह से। अगर देखिए, रघुराम राजन हो गए या ये अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन के पिता, हस्बैंड, उन्होंने क्या बोला अभी, रघुराम राजन जी ने क्या बोला, ये तो रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक के ये थे, गवर्नर थे, उन्होंने देखिए क्या बोला है। तो इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, लोग भाग रहे पैसे लेके बैंकों से, बैंकों को डुबा के विदेश में जा रहे हैं, कैसे जीडीपी आगे बढ़ेगी। और जो पैसे है वो देश के पास कुछ गिने चुने उद्योगपति के पास ही आ रहे हैं, देश के पास कहाँ आ रहे हैं। देश की जो कंपनियां हैं वो इन्होंने बेच दिए, जो प्रॉफिट में कंपनी थी वो बेच दिए। तो कैसी बात कर दी, ये तो सब इलेक्शन के लिए दिखा रही है। हालांकि देश में जो इकोनॉमिक्स में जो पंडित है, बोलेंगे ज्ञानी लोग है, वो तो कोई भी इनकी बात नहीं मान रहा कि इनके वक्त में ऐसे जीडीपी की बढ़ोतरी हुई है, कोई नहीं मान रहा है। लेकिन इतना यहाँ ये बात तो है कि जहाँ तक जीडीपी की कैलकुलेशन है, उसका बेस ईयर चेंज कर दिया है आपने। अगर आप बेस ईयर चेंज करोगे तो जीडीपी ज्यादा ही दिखेगा। अगर मान लीजिए आप बेस ईयर लेंगे जब कोविड आ गया, वो अगर आप बेस ईयर लेंगे, उस वक्त तो इकोनॉमी बिल्कुल जीरो थी, बल्कि माइनस में गई थी। अगर वो बेस ईयर लेंगे तो अभी तो आई एम सरप्राइज कि इन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर ग्रोइंग एट 10%, 10 के 11% पे क्यों ग्रो नहीं कर रहे हम लोग। तो मतलब नहीं, तो अजीब है थोड़ा सा। और इनके समय में 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने राइट ऑफ कर दिए उद्योगपतियों के। 16 लाख हाँ, 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए। सर वो राइट ऑफ नहीं किया है, वो बिलो द लाइन किया है। दैट वो ये कहते हैं दैट इज टू बैलेंस द बुक्स ऑफ द बैंक्स। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करेंगे उन पैसों को वापस लेने की, सिर्फ ये है कि बैंक की बुक्स में नहीं दिखेगा वो, दैट्स ऑल। अच्छा, नहीं ठीक है, वो किसानों का भी वैसे कर दो बोलना। सर जी, किसानों का भी वैसे कर दीजिए एक बार। सर किसानों की जैसा बात उद्योगपतियों का करते वैसा किसानों का क्यों नहीं करते वैसे ही। सर मुझे समझ में नहीं आता। आफ्टर ऑल जब आप थे, चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त मुझे अभी तक याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त पे 69,000 करोड़, फिर उसको 3,000 करोड़ से इंक्रीज किया गया, 72,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया गया। अब ठीक है, वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स को फायदा मिला जिसकी वजह से एनसीपी और स्ट्रांग हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी राइट ऑफ तो हुआ ना। या तो सही, अब ऐसा ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि नहीं, हम तो किसानों हम किसानों का कर्जा राइट ऑफ करते हैं, वो उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ करते हैं। हमारे दोस्त किसान है जी, कांग्रेस के दोस्त किसान है, उनके दोस्त उद्योगपति है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग ये सब याद उन्होंने रखा होगा जब उन्होंने बटन दबाया होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि
अगर उन्होंने बटन हाथ पे दबाया होगा तो वोट भी हाथ पे ही पड़ा होगा, कमल पे हाँ नहीं पड़ा बिल्कुल होगा। बिल्कुल पड़ा है। अभी और एक बात देखिए, जी उनके जो भाषण में देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी जी का जो इंटेलिजेंस है उनको बताता रहा कि ऐसा हो रहा सर, वैसा हो रहा सर, और ये देखिए देश में ऐसे माहौल है। तो उन्होंने देखे खुद उनके मेरे पास है इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है, उसका मराठी ये अखबार है लोक सत्ता, महाराष्ट्र का अच्छा लीडिंग ये है, उसमें सब आया है कि मोदी जी के भाषण में क्या क्या बोला उन्होंने, जी वो सब उसमें है। तो देखिए सबसे जो आखिरी है ना, 21 अप्रैल से 15 मई के दरमियान जो उन्होंने बोले, उन्होंने हिंदू मुस्लिम 60 बार बोले, 60 बार, जी जो पहले उनके भाषण में नहीं था। 21 अप्रैल के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू किया। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि पहला और दूसरे कहीं चरण में ऐसा तो ठीक नहीं है ठाक- उसकी वजह से पूरा हिंदू वोट जो है कंसोलिडेट हो गया हो बीजेपी की तरफ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो 26 को इलेक्शन हुआ, कहाँ जी। हुआ ऐसा? महाराष्ट्र में 26 को हुआ, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं दिखा ऐसा। उल्टा इनके जो 400 पार के नारे की वजह से मुस्लिम और दलित जो वोटर है वो डर के मारे बहुत ज्यादा तादाद में वोटिंग को निकले हैं, तो बीजेपी को उसमें नुकसान ही हुआ है। आपने बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आर्टिकल 370 पर जो बयान दे दिया है, बयानबाजी किया है, देश हित के खिलाफ किया। आपने रीजनल एस्पिरेशंस को आपने महत्व दिया और देश के बारे में कम सोचा। ओवरऑल तुष्टीकरण में भी आपने तुष्टीकरण को पहले माना। तो ये कैसे आरोप है आप लगेगा कि आपके देश हित में जो भी काम आता है उसमें भी आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। जो आपका बयान था, बीजेपी ने कहा कि निंदनीय है, कांग्रेस ने जो किया वो गलत किया, आर्टिकल 370 में जिस प्रकार से बयानबाजी की है। अच्छा, बीप के बारे में क्या कहना है बीजेपी का? बीप के बारे में पूरे देश में बीप बिल्कुल बीप के बारे में क्या कहना है? बीप पे पाबंदी लानी चाहिए। बिल्कुल लोगों के घर पर जाके यूपी बिहार महाराष्ट्र में मुसलमानों के घर पे जाके देख रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या खाना खाया है, गाय का है, बैल का है, बकरे का है, ये सब देख रहे हैं। और गोवा में बोलते हैं कि हम बीप को बैन नहीं करेंगे, केरल में बोलते हैं कि बीप को बैन नहीं करेंगे। तो ये नहीं है उनकी तुष्टीकरण की नीति। और अगर कांग्रेस ने बोला होगा कि 370 कलम का महाराष्ट्र को क्या फायदा है, सही बात है। उसमें देश में कौन सा ऐसा 370 की कलम की जो बात है, ये भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन आम जनता को उसमें फायदा क्या दिख रहा? उनके उद्योगपति दोस्तों को जमीनें मिल गई, उतना ही हुआ, पूरा कैंसिल तो हुआ नहीं। 370 कलम पूरा कैंसिल नहीं हुआ। उसमें कुछ प्रोविजन जो है उन्होंने वो हटा दिए कि भाई यहाँ जमीन कोई दूसरा गैर कश्मीरी आदमी जमीन नहीं खरीदी कर सकता। ये जो प्रोविजन था हटा दिए, उसका फायदा उनके उद्योगपति मित्रों को हुआ, तो ये वो फायदा उनका हुआ, आम पब्लिक को दिखा ही नहीं। देखिए कांग्रेस जो बात करती है, वो भी बात करते हैं, भाजपा या कांग्रेस लोगों के वोट लेने के लिए जो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों के दिल की बात बोलने की कोशिश करती है। तो हमने भी लोगों के दिल की बात बोलने की कोशिश की कि क्या फायदा हमको, 370 कलम रद्द कर दिया आप बोल रहे हैं, उसमें हमको क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा? 10 साल उन्होंने कहा कि 10 साल 10 कमाल में कश्मीर एक कमाल है। बीजेपी का कहना है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वहां पर दिया, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज दिया, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी वहां पर दिया, 2 एम्स, 7 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स, मेट्रो लाइन जम्मू में, श्रीनगर। तो एक आंकड़ा उन लोग स्टैटिस्टिक्स दे दिए। देखो नहीं, बोलिए। तो वो पूरा आंकड़ा दे रहा, श्रीनगर से हमने वो आईटी पार्क बना दिया, 7000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट, श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन हमने चालू कर दिया है, सांबा में एम्स उधमपुर हमने चालू कर दिया है, जम्मू तो एक एक आंकड़ा दे रहा कि देखो हमने क्या क्या किया कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, जस्टिफाई कर रहे वो। सुधीर जी ऐसा है, वो जो बोलते हैं एम्स का, आईआईटी की जो बात करते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल सुधीर जी, एम्स और आईआईटी की जो बात करते हैं, तो हमारे कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर साहब, उन्होंने एक राज्यसभा में प्रश्न पूछा था कि पिछले 5 साल में कितने आईआईटी और आईआईएम की स्थापना हुई है। तो जवाब में मिनिस्टर ने आंसर दिया कि पिछले 5 साल में एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं बना है। लिखित उत्तर है, लिखित उत्तर।
राज्यसभा में। और उसके पहले 4-5 महीने पहले मोदी जी ने विदेश में जाके कहा कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ, हमारे सरकार में ऐसा हुआ, इतने आईआईटी खुले, इतने आईआईएम खुले, इतने स्कूल खोले, इतने हॉस्पिटल खोले। सब गलत बातें निकली। उनके मिनिस्टर ने बता दिया कि एक भी नहीं खुला। तो ये सब उनकी झूठी बातें रहती, हवाई बातें रहती कि हमने इतने बोला। जब मिनिस्टर ने जवाब दिया कि एक ही भी आईआईटी और आईआईएम नहीं खोले, आप तो बता रहे कि हाँ उन्होंने बोला है आईआईएम खोले, आईआईटी खोले, तो कहाँ दिए जवाब में? जवाब को मिलके 6-8 महीने हो गए सिर्फ। लेकिन आज की तारीख में हर जगह पे जब भी बीजेपी से बात करो वो यही आंकड़े देते हैं, इतने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल गए, इतने आईआईटी खुल गए, इतने इंडियन इंस्टीट्यूट। नहीं, बोलते हैं सिर्फ वो भाषण, वो बोलते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं रहता है वैसा। अगर हकीकत में रहता है तो राज्यसभा में झूठ थोड़ी बोलेंगे उनके मिनिस्टर। राज्यसभा में लिखित प्रश्न में दिया है उन्होंने। कुमार केतकर साहब और दूसरी बात है, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता देश के किसी भी हिस्से से हो, खुदा ना खास्ता अगर उसकी बीमारी हो जाती है, बेचारा जब बीमार पड़ता है वो सीधा दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्यों आता है? हाँ हाँ, वो साथ में जो एम्स खुला है वहां जाना चाहिए ना। नहीं। और उनकी जो बात करते हैं ना कि हमने आरोग्य व्यवस्था ऐसी की, वो दिख गई वहां पे यूपी में जी। लोग है ना ऐसे ही फेंक दिया लोगों को। कोरोना के समय लोगों को जलाने की व्यवस्था नहीं थी, उनको दफन करने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही नदी के किनारे उनको फेंक दिया, ऐसे गाड़ दिया रेत में, इस तरह से व्यवस्था हुई। तो कहाँ आरोग्य व्यवस्था कहाँ चली वहां पे? महाराष्ट्र में तो कितनी अच्छी व्यवस्था चली। उद्धव ठाकरे साहब ने कितना अच्छा ध्यान दिया। ऐसी बदहाल व्यवस्था नहीं थी महाराष्ट्र में जैसा यूपी में हुई थी। तो इनके सब दावे खोखले हैं सर। लेकिन फिर भी बार बार वो ये कहते हैं कि उद्धव जी ने अपने 2 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घर में बैठे रहे। आपको नहीं, हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। नहीं गलत, वो तो देखिए, वो तो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से हार जाए, वो भी हार जाए, उनकी एक भी सीट नहीं आए, और पूरी शिवसेना की जो सीटें, पूरे भाजपा की सीटें आए पूरे, ये चाहते, शिवसेना खत्म हो जाए ये चाहते। इसलिए उद्धव ठाकरे साहब के खिलाफ बात करते हैं। मैंने देखा है जो नर्सेस है, अब मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं लोगों के पेशेंट के लिए जाता हूँ। मेन हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में लोग फोन करते हैं, हम जाते हैं, क्या हुआ, कैसा क्या हुआ। तो वहाँ के जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उन्होंने बताया था कि देखिए उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। और आपको एक बात बोलता हूँ कि वो उनके सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ सब तरह से। वो बातें नहीं करते थे, वो काम करते थे। उनपे एक आरोप लगा कि घर पे बैठ के काम किया उन्होंने, घर से निकले नहीं। वो मंत्रालय में नहीं गए होंगे, लेकिन उन्होंने मीटिंग लिए, सह्याद्री गेस्ट हाउस में लिए, मलबार हिल में लिए, अपने वो उनके बंगले पे लिए। तो उन पे जो आरोप है वो तो उनको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कोशिश भी की बर्बाद करने की, लेकिन आज भी उद्धव ठाकरे साहब को 12 सीटों से ऊपर ही मिल रही। पिछले बार भाजपा के साथ रहते हुए उनकी जितनी सीटें मिली थी उससे ज्यादा भाजपा के खिलाफ लड़के उनको मिली। 2014 में भी देखिए, 2014 में वो लड़े, 63 सीटें लाई थी उन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़के विधानसभा में। और जब भाजपा के साथ आ गए 2019 में तो 56 सीटें आ गई। लेकिन आप ये बताएं सर, चलते चलते आपके मुताबिक आपको कितनी सीटें आ रही हैं सर? अकेली कांग्रेस को? पूरा ऑल इंडिया लेवल पे, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे? जी, ऑल इंडिया लेवल पे। देखिए ऐसा है कि आज खड़गे साहब ने जो मीटिंग ली है उसमें उन्होंने सब प्रदेश अध्यक्ष को और बाकी जो अलायंस के जो है मित्र पक्ष, उनको पूछा कि आपकी कितनी सीटें आ रही। अब उसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो तो मैंने इसके पहले बताया कि वो झूठ तो बता नहीं सकते, जितनी सीटें आ रही उतनी बोली होंगी, नहीं तो बाद में पूछेंगे आप तो दावे तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, इतनी सीटें कम क्यों आई? इसलिए हो सकता है कि उन्होंने 1 सीट कम ही बताई होंगी। अगर 10 आ रही तो उन्होंने बताएंगे 8-9 सीटें आ रही सर, क्योंकि उन्होंने अगर 10 बोली और आई 5 तो 4 दिन के बाद खड़गे जी बोलेंगे क्यों? तो इस तरह से जो आज मीटिंग में जो सामने आया सच, तो लोगों ने जो कम से कम सीटें जीतने वाली है वही बताई, वो 295 है। इसका मतलब इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। क्या बात है सर, मुबारक हो आपको। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी चीज को रिपीट करेंगे 4 जून को। रिपीट करेंगे जी। और
और आपको मिठाई भी लेके आएंगे। क्या बात सर वो मिठाई तो हम वैसे भी खा लेंगे आपकी, भले आप हारे या जीते मिठाई तो खाएंगे हम आपसे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल तो प्रदीप जी मतलब कांग्रेस का व्यू बिल्कुल टोटली अपोज्ड है टू दी एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, वो तो सर, मतलब दिल्ली तो क्लीन स्वीप बीजेपी का दिखा रहे हैं। हाँ 6-1 जैसे लास्ट टाइम हुआ था 7 की 7 दिल्ली में कांग्रेस को आई, बीजेपी को आई थी, इस बार भी पूरी की पूरी आएंगी। यस यस और तो और छोड़िए, पंजाब भी वैसा ही बोल रहे हैं कि Yes, पंजाब में yes. भी बीजेपी, मतलब पंजाब में बीजेपी को कोई पूछता नहीं है। करेक्ट है। तो ये एग्जिट पोल के ऊपर तो मुझे जरा सवालिया निशान दिख रहा है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बिकॉज दिल्ली ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ना आई डोंट थिंक सो आइदर। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट वेट इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा सर। बिकॉज एवरीबडी प्रेडिक्टेड 7-0 अगेंस्ट द बीजेपी। द Sir- बीजेपी विल नेवर ओपन द अकाउंट इन दिल्ली। सर 4-3-5-2 ऐसा करके हो रहा था, लेकिन फॉर द बीजेपी टू विन 6 इन ऑल लाइकलीहुड 7 probably and for the India Alliance to get only 1 is I think a bit much. यस यस, सवाल ही नहीं उठता। Unless these guys know something about Delhi which I don't. I've been born in Delhi, I've grown up in Delhi, I know Delhi very well. और अगर दिल्ली के लोगों ने इस किस्म की वोटिंग करी है फिर तो भाई आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री। और ये याद रखिए, In spite of all what happened, Kejriwal out, Kejriwal campaign, the whole Delhi was up with him, on the streets, on the road, fighting with him. And in spite of all this, if the exit polls say that Aam Aadmi Party might just get 1 seat, then एंड द कांग्रेस नथिंग। yes. मतलब जयप्रकाश अग्रवाल जी भी अपनी सीट हार जाएंगे चांदनी चौक में। बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, मालूम पड़ जाएगा सब 3 दिन की तो और बात है, ऐसे ऐसी क्या बात है। एट द मोमेंट विद अस महमूद देशमुख साहब। महमूद देशमुख साहब नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। तो महमूद देशमुख साहब, बीजेपी तो कहती है हमारे 350 सीट पक्की है, हमारी अकेले की 350 सीट पक्की है, और बाकी जो एनडीए के जो अलायंस है वो मिला मिलू के 380-390 करीब तो पहुंच जाएंगे हम लोग, ऐसा बोल रहे हैं। इसी आप तो लग कह रहा रहे थे है सर। वो एक है इंडिया टुडे के 241 सीट्स उन लोग एग्जिट पोल्स का कर दिया, उसमें 153 बीजेपी का है जी। यानी 50% से ऊपर। सर वो 153 जो है आप लोअर लेवल पे बता रहे हैं, यस मैक्सिमम लेवल 168 है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब 153 टू 168 टू एनडीए Yes, sir. और इंडिया अलायंस की 70 टू 85 में। खैर उसको छोड़िए, चलिए, क्योंकि अब जैसा महमूद देशमुख साहब, जैसा प्रदीप जी और मैं डिस्कस कर रहे थे, पिछले 10 साल में भले स्टेट की इलेक्शन हो या राष्ट्रीय चुनाव हो, बीजेपी एग्जिट पोल में तो कभी नहीं हारी। चैनल के जो एग्जिट पोल होते हैं उसमें बीजेपी नहीं हारती। क्योंकि ये सभी चैनल उनके ही लोग, जी चैनल में बैठे हुए लोग उनके हैं। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है सर, अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करें दिल्ली में, पंजाब में, क्योंकि दिल्ली में तो हमें लग रहा था वेरी फ्रैंकली कि आम आदमी पार्टी की जो सिचुएशन है बहुत अच्छी होगी इस बार, मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक दिल्ली का जो रुझान देखा गया था वो ये था कि राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी और लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे अरविंद केजरीवाल जी, ये हमेशा दिल्ली का रुझान रहा है अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं। मतलब 2019 लोकली अरविंद केजरीवाल, नेशनली मिस्टर मोदी। इस बार क्या होगा सर, जरा बताएं आप। नहीं, इस बार तो परिवर्तन होगा। देखिए, लास्ट टाइम अलग अलग लोग लड़े हुए थे, इस समय इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं और उम्मीद है 2 दिन इंतजार कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा जी। मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया अलायंस के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट, 7 में से लगभग 5 तो मतलब उम्मीदवार हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, ये उम्मीद है जी। आज ये रिजल्ट जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स का आ रहा है, सफाई दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, हम सब विश्वास कर रहे थे कि साथ के साथ इंडिया अलायंस को जाएगा, मगर वहां एग्जिट पोल्स कुछ और ही दिखा रहा है, हम तो विश्वास नहीं कर रहे। बट ये एक ट्रेजिक भी है कि कल केजरीवाल साहब को सरेंडर करना पड़ेगा, एक वातावरण बन गया पूरे दिल्ली में, और केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। ये साजिश जो चल रहा है, ये साजिश सिर्फ मेरी, इट्स नॉट अगेंस्ट मी, इट इज अगेंस्ट द एंटायर ऑपोजिशन। आज मैं जाऊंगा, कल कोई और जितने लीडर्स है ऑपोजिशन के सब अंदर जाएंगे, ये एक माहौल है, और मैं इसके लिए कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हूं, जेल जाऊंगा, आई विल फाइट इट आउट। महमूद देशमुख जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है,
जो उन्होंने उनको इंटरिम जो जमानत दी थी, 21 दिन जमानत के बाहर थे और कल उन्हें सरेंडर होना है, उसके लिए उन्होंने भी राजी खुशी से कहा है कि मतलब उसमें कोई ऐतराज नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको हम फॉलो करेंगे। और रही चिंता की बात, ऐसी कुछ नहीं है। जैसे आपने अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो देश के लिए, ये देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, कोई एक नेता खतरे में नहीं है, ये विपक्ष खतरे में नहीं है। तो देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर वो कहते हैं कि भाई मुझे अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं। जी, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आने वाले कल ये अभी 4 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। 4 तारीख के बाद ये खुद ही घर चले जाएंगे, उसके बाद ये सब बातें बंद होगी। तानाशाही का अंत होने का समय आ गया है, 2 दिन की बात है, इंतजार कीजिए, मैं तो यही कहूंगा आपसे। और महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे? हम लोग तो यही हैं सर, महमूद देशमुख साहब, ये तो हमारा स्टेट है, हमारा राज्य है। इस राज्य के बारे में क्या कहेंगे सर आप? सर महाराष्ट्र में 25 से 30 सीट मेरे अंदाज से लगभग 30 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को मिल रही है। महाराष्ट्र में अजित पवार 0 पे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिंदे साहब 0 पे जा रहे हैं। मतलब इनका अपना खुद का मतलब अस्तित्व अभी खत्म होने का समय आ गया है और इंडिया अलायंस की जो है सीटें बढ़ रही है। लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए कि लास्ट टाइम जो है महाराष्ट्र के अंदर 40-42 सीट मतलब इनके एनडीए के पास थी। आज इसके अंदर से लगभग 15 से 18 सीट इनके पास रहेंगी, इसके ऊपर नहीं रहेगी। तो काफी इनका नुकसान होने जा रहा है और पूरे देश में यही हालात है हर जगह पे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश से एनडीए सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जा रही है और आने वाले कल में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए सर उल्टा हो गया तो, जैसा कि ये चैनल वाले बता रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए चैनल वाले जो बता रहे हैं, ये देखिए ये एक मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये चलता है ना, एक जुआ है ना, ये सटोरिये वाला खेल चल रहा है। मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर बैन लाना चाहिए। ये जो चल रहा है ये बैन लाना चाहिए। ये किस तरीके से ये बातें करते हैं, है ना, एग्जिट पोल ये सब बोगस चीज है, जुआ है बहुत बड़ा। कहीं अभी आपने भी सुना होगा सट्टा बाजार में ये चल रहा है, ये दूसरा सट्टा बाजार है एक तरीके से देखा जाएगा तो मैं इस पे विश्वास नहीं करता। आने वाले अब 2 दिन की बात है, आप इंतजार कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, आज इतने नंबर निकाल दो, उसके ऊपर पैसे कमा लो, रिजल्ट जो मर्जी हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे पहले बिहार में हुआ था 2017 में, ये दिखा दिया था कि बीजेपी जो है बड़े आराम से जीत रही है बिहार के इलेक्शन जो है। फिर उसके बाद ये दिखाया गया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वेस्ट बंगाल में। फिर दिखाया गया कैसे दिल्ली में बीजेपी जीत रही है। आम आदमी पार्टी की तो 10 के 15 सीट भी नहीं आ रही है और आम आदमी पार्टी की 62 सीट आ गई। मतलब मैं वही कहता हूँ ना कि देखा जाए तो ये एग्जिट पोल जो है इसके ऊपर बैन करना चाहिए कानूनन तौर पे। इसमें मतलब मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और ये बैन करना चाहिए। जी केजरीवाल जी ने आज मीन्स जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जो किस प्रकार से बीजेपी खत्म कर रहे हैं, मोदी साहब खत्म कर रहे हैं, बोले कि मैं एक उदाहरण हूं, आम आदमी पार्टी एक उदाहरण है, मनीष सिसोदिया जेल में है, बहुत सारे हमारे लीडर्स जेल में हैं, संजय सिंह अभी जेल से छूट के आए हैं, कोई बिना रिकवरी अभी तक हम लोग सह रहे हैं। अभी तक केजरीवाल जी का खुद का हेल्थ इतना खराब है, करीबन 10 किलो वजन कम हो गया उनका और बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसका चेकअप करना पड़ेगा, बिकॉज इतना जल्दी 10-15 किलो कम हो जाता है तो उसका मतलब है कि और भी आपको प्रॉब्लम्स होगा। तो मगर आज फिर ईडी ने कहा कि आपने पहले चेकअप क्यों नहीं किया, अब इतने दिन बाहर थे। तो एक लगातार ये अपने बात किया, आम आदमी पे पार्टी बात, फिर अलग झारखंड वगैरह एक सीएम को जिस प्रकार से हैरेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी को जिस प्रकार से हैरेस कर रहे हैं, पार्टी छीन लिया, हर चीज छीन लिया, शरद पवार साहब के पार्टी छीन लिया, सिंबल छीन लिया। नो एक चीज जो जा रहा है टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं और थर्ड टर्म एक बहुत मुश्किल पूरा देश के लिए हो जाएगा वो केजरीवाल साहब का। और इसके लिए ना केजरीवाल साहब ने हाईलाइट कर, देशमुख जी, क्या डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन, ऑटोक्रेटिक सिस्टम चालू है इस देश में? प्रदीप जी,
मेरे पहले आपने खुद ही ये मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है ना। और अच्छा होता कि इस देश की सभी मीडिया इसको मान ले। जनता भी समझ चुकी है कि इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र का नामो निशान मिट गया है और मिटाने की कोशिश अभी भी जारी है। और जैसे आपने कहा कि ये तीसरा टर्म मैं समझता हूं कि ये इनका भ्रम है, तीसरा टर्म इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर अभी जो चुनाव हुए हैं, आज जो सातवां जो चरण में जो चुनाव खत्म हुआ है, आज इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश की जनता ने यह तय किया है, इस देश से इस तानाशाह को खत्म करना है। अगर संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी गई, किसी पार्टी को जिताने की लड़ाई नहीं है, ये देश का संविधान बचाने की लड़ाई है, देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी गई है और ये जनता ने लड़ाई लड़ी है, जिसके अंदर मतलब इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर हैं। तो मैं समझता हूँ ये जनता इस देश की सब समझ चुकी है, इस तानाशाह को निकालने और तानाशाह का मतलब जाने का समय अभी आ गया है और 4 तारीख को ये तानाशाह जा रहे हैं, या आप मान लीजिए। आज मोदी साहब ने, बीजेपी ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला, बोले कि 2023 2024 में जो जीडीपी ग्रोथ है 8.2 ग्रोथ, 8.2% जीडीपी ग्रोथ है, जबरदस्त ग्रोथ है। और ये दिखाता है कि मोदी जी के पॉलिसीज, मोदी जी के फोरसाइट, मोदी जी के विजन, मोदी जी के इंप्लीमेंटेशन और मोदी जी के टोटल कंट्रोल इकोनॉमी के। तो आप ये कैसे देखते हो? बोले ये आंकड़ा हमारा नहीं, ये आंकड़ा सरकार का है, सरकार का आंकड़ा है कि हमने 8.2 ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। महमूद देशमुख जी, बीजेपी अपने आप को थपथपा है। प्रदीप जी, सरकार किसकी है? ये सरकार का आंकड़ा है तो सरकार किसकी है? सरकार भी तो इनकी है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, सरकार इनकी है, सब कुछ तो इनका है। ये जो कहेंगे वही लोग मानेंगे, लोग सुनेंगे। अगर वाकई में इन्होंने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है तो फिर इनको 10 साल में मतलब आज चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम वाली बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी आप सोचिए ना, आज किसानों के आप कहते हो तरक्की की, मतलब काफी मतलब जीडीपी बढ़ा हुआ है, तो फिर ये 205 लाख करोड़ जो हुआ है कर्जा, ये कहां से हुआ? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के मसले हल नहीं हो रहे, बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ये देश को तरक्की पे किस तरह पर ले गए? ये सिर्फ एक बनावटी, एक इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है, एक सिनेरियो तैयार किया है झूठा, है ना, एक खोखला ढांचा तैयार किया है कि बस मतलब ढिंडोरा पीट रहे हैं। या वो कहावत होती है ना, एक अपने मुंह मियां मिट्टू वाला वो हाल है इनका। करना धरना कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर इन्होंने धर्म की राजनीति की है, जाति की राजनीति की है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया, जाति जाति में लड़ाने का काम किया है। और महंगाई, आप सोचिए महंगाई आज किस स्तर पे है। आप आज हर घर में आप किसी से पूछ सकते, एक सर्वसामान्य जनता से अगर आप पूछेंगे तो वो खुद बताएंगे आज महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी मतलब परेशान हाल है। ये इन्होंने कौन सी तरक्की की है देश में? अब ऐसा हुआ है, आपको ये चीज बता दूं सर, अब तो मैं यहाँ पर वो देख रहा था, एग्जिट पोल देख रहा था, मैंने देखना बंद कर दिया। अब मैंने देखना बंद कर दिया सर। बीजेपी की तो 370 सीट दिखा दी उन्होंने सर, तकरीबन सबने 350, 368, 370 सभी चैनल, कोई चैनल 400 पार का जो नारा था वो कहाँ चला गया सर? नहीं सर, वो है ना, वो सिर्फ बीजेपी के दिखाई है, अभी एनडीए की नहीं दिखाई। एनडीए की भी आ जाएगी अभी 400 पार, वो भी हो जाएगी। मैं आपको कहता हूँ बीजेपी 200 के अंदर निपट जाएगी और बीजेपी अलायंस जो है, एनडीए अलायंस जो है बहुत ज्यादा होगा, तो 225 और 230 के अंदर ये लोग रहेंगे। इसके आगे ये नहीं बढ़ रहे हैं। ये अपने दिल को तसल्ली करने के लिए कुछ भी बोले, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी करें, या ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हुए लोगों को एक तरीके से ये मतलब नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मैं हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ सर, मुझे क्या मालूम। अरे सर, हम तो सर उसी बात पे जाते हैं जो लोग हमें बताते हैं, सड़क पे, बाकी हर जगह पे हम लोग फ़ोन करते हैं। सुबह से हम फ़ोन पे चालू हो जाते हैं। यूपी के अलग अलग इलाके हो गए, बाराबंकी हो गया, अपना लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, यहाँ तक के रामपुर हो गया, अपना ही मतलब बाकी मुरादाबाद हो गया,
अब वो मुरादाबाद में बेचारे जो ब्रास का काम करते हैं, पीतल बीतल के जो बर्तन बनाते हैं, बेचारे इतने परेशान है जीएसटी से कि वो उन्होंने वो काम धंधे बंद कर दिया। आपको मालूम है कि ब्रास के जो जितने बर्तन आया करते थे मुरादाबाद से एक जमाने में, ये मुरादाबादी बर्तन वहाँ वो आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं। वो जीएसटी से इतनी मार पड़ी है लोगों को, उन्होंने बंद कर दिए, धंधे वंधे बंद कर दिए। उनका यार खेती बाड़ी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बैठ जाओ आराम से, या अपनी दुकान जो है किराए पे दे दो। तो उसके बावजूद अगर बीजेपी जीत जाए तो इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है कि मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, हो सकता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इतना अकलमंद नहीं हूँ सर, मेरे में इतनी अकल नहीं हूँ। आप ज़रा समझाएं, इसमें ज़रा रोशनी डालें, ये हो क्या रहा है, मतलब मेरी समझ के बाहर है। नहीं ऐसा है, देखिए उत्तर प्रदेश में ये 50 सीट के ऊपर नहीं जाएंगे, आप मान लीजिए जी। ये 40 और 50 के बीच में ये आंकड़ा रहेगा इनका। पिछली बार 64 सीट आई थी 80 में से। हाँ, पिछले बार 62 प्लस 2 इनके अलायंस थे जी, है ना, 62 इनके थे और 2 अलायंस के लोग थे। आज अभी मैं समझता हूँ 40 और 50 के बीच में रहेगा बीजेपी और अलायंस मिलाकर, इसके ऊपर ये नहीं जा रहे हैं। कुछ भी कर ले, ये मान लीजिए गुजरात हो या राजस्थान हो, राजस्थान में 8 से 10 सीट में ये माइनस होने जा रहे हैं। गुजरात में ये बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है। राजस्थान में एटलीस्ट इंडिया टुडे की जो एग्जिट पोल है वो दिखा रही है कि राजस्थान में बीजेपी की सिर्फ 15 सीटें आ रही हैं। जी 26 में से 15 आ रही है, ये 25 में से 15 आ रही है, ये दिखाया उन्होंने। 25 में से 15 बिल्कुल जी, तो जी। 10 सीट का लॉस ही है ना, माइनस ये है जी। ये हर जगह पे माइनस होने जा रहे हैं, ये प्लस कहीं नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में दिखाया कि मध्य प्रदेश में पूरी 27 की 27 ऐसा कहा है, हरियाणा में पूरी 10 की 10, और इधर क्या है गुजरात में पूरी 25 की 25, दिल्ली में पूरी 7 की 7। मतलब ये आप तो सर अभी इसमें कितने बढ़ाएंगे, आप मुझे बताइए ना, बढ़ने का कोई चांस है क्या? हरियाणा में, राजस्थान में, वहां बढ़ने का चांस, गुजरात में, नहीं मतलब जरा बढ़ने का चांस तो कहीं नहीं है ना जी। फिर बढ़ाएंगे, या तो पाकिस्तान को मिला लो, बांग्लादेश को मिला लो और बढ़ा लो बोलना। हाँ, ये भी हो सकता है, ऐसी क्या बात है, उसमें क्या है ना, मिलाने को तो चाइना को भी मिला लो। बोले कि बंगाल में बढ़ने वाले बिल्कुल 30 सीट हम लोग लेके आएंगे कम से कम बंगाल में, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उधर ओडिशा में कहते हैं कि 15 सीट है और बीजेडी की सिर्फ 5 या 6 आएंगी, नवीन पटनायक जी की सिर्फ 5 या 6 सीट आएंगी वहां पे, ऐसा बोल रहे हैं एग्जिट पोल वाले जो है। देखिए ऐसा है ना, उड़ीसा में 5 सीट 10 सीट से कोई ये नहीं है। जैसा अभी वेस्ट बंगाल की बात है, लास्ट टाइम की जो 18 सीटें थी वो 18 सीट 42 में से 18 सीट ये बचा ले हुए, यही बड़ी बात है वहां पे, है ना। ये मध्य प्रदेश में बल्कि मतलब 5-6 सीट के ऊपर मतलब हो सकता है कि इंडिया अलायंस को मिलेगी वहां पे। बीजेपी भी उसमें भी माइनस होने जा रही है, एमपी में माइनस होने जा रही है, राजस्थान में माइनस होने जा रही है, हरियाणा में माइनस होने जा रही है। एमपी में तो बोल रहे हैं 100% सीटें आएंगी। सॉरी, पूरे मध्य प्रदेश में तो बोला जा रहा है कि पूरी 27 की 27 आएंगी इनको, 29 की 29, मतलब 100%। हाँ, नहीं मैं कहता हूँ ना कि उस वहां पे भी मतलब 6-7 सीट ये माइनस होने जा रहे हैं। तो हर स्टेट के अंदर ये माइनस अगर हो रहे हैं तो ये प्लस कहाँ से होंगे, ये तो समझाए ये लोग। वो कह रहे हैं कि केरल में जीत रहे हैं और केरल में 0 है सर, केरल में 0 है, तमिलनाडु में 0 है, तमिलनाडु में 0 है, आंध्र प्रदेश में गेन है चंद्रबाबू नायडू का अलाइंस। ठीक सर, मैंने क्या कहा, आंध्रा जो है, देखिए आंध्र प्रदेश में अगर ये गेन भी करते हैं ना, क्या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू इनके साथ में अगर आते भी हैं तो बाकी जगह पे ये जहां माइनस होने जा रहे हैं, आप उसके बारे में भी तो सोचिए ना जी। अगर ये इनकी जो है कुछ जगह पे जैसे ये प्लस होने जा रहे हैं तो वहां पे वो पूरा जो मतलब इनका जो ये जहां से जहां ये प्लस होने जा रहे हैं वो टोटल माइनस हो रहा है। यहाँ पे गुजरात में ये माइनस होने जा रहे हैं, राजस्थान में ये माइनस होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में ये माइनस होने जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल अभी एग्जिट पोल्स के हिसाब से आपको 2 सीट तक नहीं मिलेगा पंजाब में आम आदमी पार्टी को, 0 to 2 एग्जिट पोल्स का कहना है कांग्रेस वाज गोइंग टू स्कोर बेटर देन यू। आप 7 से 9 कांग्रेस, 2 से 4 बीजेपी। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आम आदमी पार्टी यानी सब जगह, दिल्ली में भी फेल और पंजाब में भी फेल, पंजाब में भी फेल। नहीं देखिए ऐसा है ना, मैं क्या फिर कहता हूं, मैं एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता।
मैं इस देश की जनता पे भरोसा करता हूँ, पंजाब हो या दिल्ली हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, इस देश की जो जनता है, इस देश का जो वोटर है ना, हम उन पे भरोसा करते हैं, हमें उन पे विश्वास है। इस देश की जनता समझ चुकी है, इस तानाशाह को बाहर करना है, संविधान बचाना है, इस देश का लोकतंत्र बचाना है। मैं इसके लिए मैं उन पे ज्यादा विश्वास करता हूं। और अगर ये जैसे जिस तरीके से एग्जिट पोल वाले कहते हैं, तो ये इस देश के उन वोटरों का अपमान है, इन वोटरों का मतलब अपमान कर रहे हैं, इस मतदार का अपमान कर रहे हैं। ये गलत बात है। आने वाले 2 दिन की बात है, इंतजार कीजिए, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, केजरीवाल जी एक संघर्ष कर रहे हैं और जबरदस्त संघर्ष है। दिल्ली के लोग माना, पंजाब के लोग माने, पूरे देश के लोग के सहानुभूति केजरीवाल जी के साथ है। केजरीवाल जी एक ऐसा मूवमेंट चला है पूरे देश में कि बाकी पार्टियों को फॉलो करना पड़ा। गरीब को, बच्चे को स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, दवाखाना, ये सब केजरीवाल का देन है जो पूरे देश इंप्लीमेंट कर रहा है। देश देखा भी है, आपने इंप्लीमेंट भी किया है। तो फिक्र इस बात का है कि केजरीवाल जी कल जेल में जाएंगे। आपके दूसरे नंबर 2 सिसोदिया जी भी जेल में है, और भी लोग। और अगर खुदा में खास्ता हम लोग चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली स्वीप करे, पंजाब स्वीप करे, सब जगह अच्छा ढंग से पेश आ जाए, मगर ये भी नहीं होता तो लंबा संघर्ष देख ले हम लोग आ रहा है। हमारे टॉप के लीडर्स जेल में हैं आम आदमी पार्टी के, और सीट भी नहीं जीते। अगर ये हालत हुआ, आलम है तो। और उन्होंने ये भी कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है, लोगों से अपील की है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं भले ही जेल में रहूंगा, लेकिन आप लोगों को जो सुविधा दी जा रही है वो बनी रहेगी, है ना। पानी का मसला हो, पानी है, बिजली है, महिलाओं के लिए जो मतलब बस की सुविधा है, अस्पताल की सुविधा है, स्कूल का बच्चों का मसला है, बोले वो सब जारी रहेगा। मैं जेल में भी रहूंगा तो भी आपके बारे में सोचता रहूंगा, आप सिर्फ दुआ कीजिए, उन्होंने ये कहा है। और मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता मतलब अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुआ करेगी कि जल्द से जल्द इनकी साजिशों से मतलब वो बाहर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो साजिश है, तो उनसे वो बाहर आ जाएंगे और मैं समझता हूँ बरी हो जाएंगे। और 5 तारीख को मतलब शायद कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, 5 तारीख को हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि उनको बेल मिल जाए, रेगुलर बेल मिल जाएगी जी, क्योंकि 5 तारीख को तो है ना, केस भी है। 5 तारीख को देखते हैं क्या होता है। जी, खड़गे साहब के घर में आज मीटिंग हुआ, पूरे इंडिया अलायंस के मीटिंग, और उस मीटिंग में चर्चा हुए, सब पार्टीज ने जायजा लिया सिचुएशन का कि अब क्या होना है, आगे बढ़ के हमको क्या करना है। खड़गे साहब बाहर आकर देश को संबोधित किया कि इंडिया अलायंस 295 सीट्स लेके आ रहे हैं, 295 सीट्स। ये कॉन्फिडेंस है खड़गे साहब में। बोले कि मैं टोटल सब जितने अलायंस पार्टनर से मिलके और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद 295 सीट्स का हमने ऑलरेडी करेक्ट कंफर्म है, मिलेंगे। तो एक जबरदस्त जीत है, 272 295। आप एक्चुअली इंडिया अलायंस का कहना भी ऑलरेडी क्रॉस मेजोरिटी हमारे हिसाब से। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है खड़गे साहब ने। देशमुख जी, ऐसा है प्रदीप जी, आप अगर इसके 15 दिन पीछे अगर आप जाएंगे, तो मैंने आपसे खुद चैनल पे कहा था, आपके चैनल के माध्यम से, कि लगभग 280 से लेके 300 के बीच मतलब इंडिया अलायंस को सीटें मिलेंगी। इसके उन्होंने जो कहा है वो बात में मतलब बिल्कुल मतलब सच्चाई है। और हकीकत में यह है कि मैं समझता हूं कि 295 हो सकता है, 300 भी हो जाएंगे, है ना। और ये 300 इंडिया अलायंस के लोग मतलब 300 एमपी 300 सीट जीत के आएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। ये बहुत ही मतलब जिम्मेदारी से मैं भी कहता हूं कि इस देश के अंदर तानाशाह मतलब की सरकार जा रही है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली होने वाली है, संविधान को मानने वाले इंडिया अलायंस के लोगों की सरकार बनने जा रही है। राइट, थैंक यू सो मच सर। महमूद देशमुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 4 जून आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर के आए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी वो है, सबके लिए सर, सबके लिए है। इस सर देश हमारा काम है रिपोर्ट करना, जो मर्जी जीते, जो हारे, जो जीते। नहीं, आज देखा जाएगा ना, जो मीडिया जिस हालात में चल रही है, मीडिया भी मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर में चल रही है। इस देश के अंदर जो मतलब लोकतंत्र का एक मतलब स्तंभ माना जाता है मीडिया को, आज वो उस मीडिया को भी इन्होंने मतलब दबा के रखा है ना। तो मैं समझता हूँ मीडिया की आजादी के लिए भी ये जरूरी है, इस देश से तानाशाही सरकार चली जाए और अच्छे लोगों की सरकार आए, इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी, संविधान को मानने वालों की सरकार आ जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।
So Pradeep ji, very surprising figures as far as Punjab is Yes, concerned. I mean, I find yes, it yes. most surprising. I mean, बिल्कुल सर. I find that the BJP is winning more seats than the Aam Aadmi Party in Delhi and Punjab. Punjab against all. That's surprising, and that could cause some kind of turmoil and unrest. That's what I That's believe. right. I mean, which is surprising. I can understand the Congress doing better than Aam Aadmi Party in Punjab, say. I mean, because after all, there is a state government, there would be resentment and so on and so forth. But for these guys to project that the BJP, which really and truly has no leg to stand on in Punjab, Exactly, sir. will get somewhere around 3 seats or 4 seats in Punjab, Yes, sir. is, I think, what? Then I'll certainly believe that the moon is made out of green cheese. I mean, come on, what is going on here? I don't know, man. I mean, this is crazy. This is absolutely crazy. Maybe the country's changed. Maybe, I don't know. Maybe everybody is looking at a different election and we are looking at a different one. At the moment with us, Kirti Nidhi Pandey ji from Gorakhpur. Pandey ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार सर. पांडे जी नमस्कार. कैसे हैं सर, कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया. तो सर पता नहीं आप एग्जिट पोल जो आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे या नहीं करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारा तो सर ये मानना है कि बीजेपी आज तक किसी एग्जिट पोल में नहीं हारी है. हर एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती है, इसमें कोई दो राय नहीं. मतलब आज 2014 से लेके अभी तक कोई भी इलेक्शन आप ले लीजिए, बीजेपी आगे. अब आप बताएं सर, वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है सर? पिछले दिनों मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हो रहे थे जी, तो सब जगह एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रही थी जी, और उन राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना लिया जी. तो एग्जिट पोल जो अनुमान का तरीका है, प्राइवेट एजेंसियां एग्जिट पोल करने वाली. हमारा अपना मानना है कि एग्जिट पोल में कितने नमूने लिए गए, किन लोगों से संपर्क किया गया, जिन महिलाओं से संपर्क हुआ वो किस आयु वर्ग की थी, क्योंकि हर आयु वर्ग की समस्याएं अपनी अपनी हैं. बेरोजगार नौजवानों से सैंपल लिए गए कि नहीं लिए गए, इन तमाम मुद्दों पर राय ली गई कि नहीं ली गई. जो हमारा मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो पे जनता से राय ली गई कि नहीं ली गई, ये तमाम सवाल हैं एग्जिट पोल पे. और एग्जिट पोल तो है नहीं, जमीनी सच्चाई से परे है एग्जिट पोल. और एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, तमाम सर्वेज दिखा रहे हैं, सभी सर्वेज में इस बात का अनुमान हम लोगों को था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी. एग्जिट पोल इसलिए बना रहे हैं, एग्जिट पोल में 4 जून को फाइनल नतीजे आएंगे, 4 जून को जो आएगा जनता का फैसला, उसको सब स्वीकार करेंगे. लेकिन जो एग्जिट पोल इस तरीके के दिखाए जा रहे हैं, इस बार लग रहा है कि कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल भी प्रेशर बनाने का काम अफसरों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर करने का एक प्रयास है. जो अफसर गड़बड़ियां करते हैं काउंटिंग के दौरान, मतदान के दौरान, तमाम रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं, इन सब चीजों पे साइकोलॉजिकल दबाव है एग्जिट पोल. और हम तो लगातार, हमारे नेता, हम लोग भी अपने वर्करों से कह रहे हैं कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ स्ट्रांग रूम पे अपनी ड्यूटी दे, बूथों पर से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएं 7वें चरण में भी. और पहले चरण से लेकर के आज तक हमारे कार्यकर्ता लगातार उसकी निगरानी भी कर रहे हैं. और हमें पूरा उम्मीद है कि एग्जिट पोल के बाद जब एग्जिट पोल आएगा तो उसका अनुमान निश्चित रूप से अलग होगा. जो इंडिया अलायंस दावा कर रही है 295 प्लस का, वो चरितार्थ होगा और 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी. क्योंकि देखिए साहब, जो आप लोगों ने मुद्दे उठाए हैं वो जबरदस्त मुद्दे हैं. बेरोजगारी का मुद्दा, हालत खराब है सर. किसानों का मुद्दा, किसानों की इतनी बुरी हालत आज तक कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है. और मैं ये मान करके नहीं चल सकता कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान है, या पंजाब का जो किसान है, हरियाणा का जो किसान है, महाराष्ट्र का जो किसान है, क्या वो चाहेगा कि वही चीज रिपीट हो बार 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 बार? मतलब मेरी जरा समझ के बाहर है ये. कौन चाहेगा? 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी. आपने किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया और फिर भी किसान आप ही को वोट करेंगे. ये जरा समझाया जाए.
पांडे जी प्लीज। देखिए ये थोड़ी सी बड़ी विचित्र स्थिति है जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं जी। ये हम लोगों के समझ से भी परे है, क्योंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, उन मुद्दों को लगातार हम जनता के बीच में रखते रहे जी। आपके चैनल के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग्स के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लगातार पब्लिक में ये बात अपनी कहते रहे और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की समस्याएं हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान की, प्राणों की आहुति दी है कृषि बिल के खिलाफ। तमाम किसान जब दिल्ली आना चाहते थे तो इस तरीके से सिक्योरिटी व्यवस्था की गई, इस तरीके से कील और कांटे लगाए गए थे जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए। हमको लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी उतने कील कांटे नहीं लगाए गए होंगे, दिल्ली में लगाए गए। नहीं है। उसके बाद भी अगर इस तरीके के नतीजों का पूर्वानुमान लगा रहे हैं मीडिया के साथी और तमाम एजेंसियां पूर्वानुमान बता रही हैं कि बीजेपी की सरकार है ये, तो आश्चर्यजनक स्थिति है कि जिस देश में 100 पढ़े लिखे नौजवानों में 80 से 85 नौजवान बेरोजगार, जिस सरकार ने 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की तो 19 लाख, 19.5 लाख पद रेलवे में थे। 10 साल में लगभग 9 लाख पद समाप्त कर दिए गए। जो रिटायर हुए उनकी जगह कोई भर्ती नहीं हुई, उन पदों को समाप्त कर दिया रेलवे के अंदर। अब केवल लगभग 11 लाख पद बचे होंगे, 10.5 पौने 11 लाख। अब इस स्थिति में भी अगर बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है, अगर वो किसान 700, 750 से ज्यादा किसानों की प्राणों की आहुति देने के बाद भी किसान इनकी सरकार बना रहा है, तो बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी विचित्र स्थिति है इस देश के। और फौज में भर्ती बंद हो गई है। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती है जो 4 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। हमारी जो 6 गोरखा रेजिमेंट हैं, 6 गोरखा रेजिमेंट जो हैं उसमें पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। अब ये भी खबर आ रही है कि जो नेपाल के गोरखा हैं वो शायद चाइनीज फौज को, चाइनीज आर्मी को ज्वाइन कर लें। और फिर भी लोग जो हैं हमारे फौजी जो हैं, हमारे हरियाणा के जो जवान हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो ज्यादातर फौज में जाया करते थे, पंजाब के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। सर मुझे जरा समझाया जाए, ये हो सकता है कि मेरे में इतनी अकल ना हो। देखिए नहीं देखिए, अकल तो आप में भी, अकल हम लोग भी समझ रहे हैं जो स्थिति है इस देश की। मेरे समझ में तो एक बात नहीं आ रही कि अग्निवीर योजना को नेपाल के अंदर गोरखा रेजिमेंट, जहां से नेपाली नागरिक भर्ती होते हैं जिसमें, उसने पहले ही इस बात से इनकार कर दिया था कि हम अग्निवीर योजना के तहत, अग्निवीर स्कीम के तहत हम भारत की सेना नहीं ज्वाइन कर सकते। साफ इनकार किया था नेपाल ने जी। और जो अग्निवीर में भर्ती हुए नौजवान, अभी कुछ लड़के जो नई भर्ती हुई अग्निवीर की उसमें शहीद हो गए। हम तो शहीद ही कहेंगे क्योंकि सेना की हिफाजत करते वक्त अगर उनकी जान गई तो शहीद ही कहेंगे। सरकार उनको शहीद मानने को तैयार नहीं, सरकार उनको शहीद का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। अगर उसके बाद भी इस देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट कर रहा हो, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो इशारा तो उसी तरफ कर रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उसके कई फैक्टर हो सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल भी दबाव बनाया जाए अफसरों पर कि सरकार में हम वापस आ रहे हैं, अफसरों पे भी इस तरीके के दबाव हम सरकार में वापस आ रहे हैं, वो गड़बड़ियां करने के लिए तैयार हों। लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हैं, हम लोग तो लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि हमारा कार्यकर्ता पोलिंग से लेकर स्ट्रांग रूम तक, स्ट्रांग रूम से पांडे जी पूरे देश यही चाहता है, पूरे देश यही चाहता है कि अखिलेश यादव जी मोदी जी के विजय रथ को रोके, और पूरे देश एकदम उत्सुकता से यूपी की तरफ देख रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव जी मोदी जी को रोक पाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, पूरे देश में सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर बीजेपी को आपको हर्ट करना है तो उत्तर प्रदेश से आपको शुरू करना पड़ेगा। अखिलेश जी करेंगे क्या, और पूरे देश देख रहे हैं। मगर बीजेपी का कहना है कि आपके पास वो जाति समीकरण नहीं है। बीजेपी का कहना है जाति समीकरण आपके पास नहीं है, अखिलेश यादव जी के पास। बोले जटा वोट जो मायावती का है वो आपके साथ नहीं है। क्या सिर्फ यादव वोट को लेके और कांग्रेस के वोट शेयर को लेके
क्या आप बीजेपी को हरा पाएंगे जब कुर्मी, राजभर, लोध, निषाद, मौर्य, जट ये सब बीजेपी के साथ है, बीजेपी का कहना है। तो पूरे देश का आंख यहीं पर लगा हुआ उत्तर प्रदेश में, उनके जाति समीकरण अखिलेश यादव जी के बयान को जस्टिफाई नहीं करते। पांडे जी देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण की जहां तक बात कर रहे हैं, जो उम्मीदवारी तय किया लोगों का, उस उम्मीदवारी में हमें लगता है कि सभी जाति के, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे लोध हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे दलित समाज के हो, सभी We've got an audio problem. I can't hear Mr. Pandey. Can somebody please check the audio? Please. Thank you. I can't hear you, sir. पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, फर्स्ट क्लास। बोलिए सर, प्लीज। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सभी जाति समीकरण के साथ जाति लोगों को उम्मीदवार बनाया, हमें पूरा भरोसा है केवल यादव और माइनॉरिटी नहीं, सभी जाति के लोग जो इस लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, जो आरक्षण बचाना चाहते हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो महंगाई से निजात पाना चाहते हैं, जो नौजवान रोजगार पाना चाहता है, इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के बीच में रहे और जनता उसको स्वीकार किए। जिस तरीके से जनसभाओं में लोगों का प्यार और समर्थन मिला है, उससे एक बात साबित है कि एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी। पांडे जी आपने सही कहा कि आपने सभी जाति को आपने समीकरण देके आपने टिकट भी दिए हैं, सब कुछ दिए, मगर बीजेपी का कहना है बट ये जो अलग अलग जातियां हैं, जो राजभर है, लोध है, निषाद है, मौर्य, जाट, कुर्मी, इन सबको हमने एम्पावर किया, हमने बहुत सारे को सेगमेंट करके उनको मंत्री बनाए, उनको एम्पावरमेंट दिया, उनको सोशल जस्टिस बीजेपी ने दिया है। इससे पहले इस प्रकार से ओबीसी सेगमेंटेशन का एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था, ये पहली बार है। इसलिए आप सिर्फ बोलते टिकट दिए, बीजेपी कह रहा है हमने इनको मंत्री बनाए, इनको एम्पावर किए। पांडे जी देखिए, जब सरकार में समाजवादी पार्टी रही तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चाहे निषाद हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे राजभर हो, इन तमाम जातियों के लोग मंत्री रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल है, उससे भी जो बड़ा सवाल है जिसको लेकर के हम लगातार चुनाव में अपनी बात करते रहे, लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में हम अपनी बात रखते रहे कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। उन शिक्षकों की भर्ती में 6800 चयनित शिक्षक जो सिर्फ पिछड़े और दलित समाज के हैं और उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं की। चयनित करने के बाद जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बनाया, संवैधानिक दर्जा दिया उस आयोग को, उसके अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो चयनित शिक्षक है, इनका समायोजन किया जाए, इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। और आप भरोसा करिए कि 650 दिन हो गए, 675 दिन के 675 दिन के आसपास, 750 दिनों में आज तक किसी पिछड़ी जाति के मंत्री ने, किसी पिछड़ी जाति के सांसद ने, किसी पिछड़ी जाति के विधायक ने, किसी दलित समाज के मंत्री ने उन विद्यार्थियों से मुलाकात नहीं किया, उनके हक की बात नहीं की, उनको नियुक्ति दिलाने में कोई पहल नहीं की। अगर उसके बाद भी पिछड़ा समाज और दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। आरक्षण तो उनका अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, अगर उसको कोई छीन रहा है और छीनने वाले के साथ लोग खड़े हैं तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और हमें भरोसा है कि पिछड़ा समाज, दलित समाज एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। सर्वे कुछ भी दिखाएं, अनुमान कुछ भी लगाया जाए, लेकिन हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगी। पांडे जी, दूसरा कि अखिलेश यादव जी ने जबरदस्त मुद्दे उठाए जो आप बार बार बोलते हो, डिमोनेटाइजेशन कैसे स्मॉल बिजनेस खत्म कर दिया, मणिपुर, किसान आंदोलन और जिस प्रकार से किले बिछाए गए उनके रास्ते पर लाठीचार्ज हुआ, क्राइम अगेंस्ट वुमन, महिलाओं क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट आपने जो हाईलाइट किया अभी, इन्फ्लेशन, अडानी स्कैम वगैरह जो राहुल गांधी जी ने कहा। मगर बीजेपी कह रहे हैं कि ये अहम मुद्दे जो देश हित के मुद्दे हैं, जैसे आर्टिकल 370 है,
वहां इंडिया अलायंस ने रीजनल तुष्टीकरण यानी रीजनल और लोकल इश्यूज को आगे डाल के आर्टिकल 370 का बीजेपी और मोदी जी के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किए। वो देश हित में नहीं था, वो देश हित में सोचते नहीं है। देश हित नहीं है बिकॉज आप उसमें तुष्टीकरण, बिकॉज आपको एक वर्ग के, एक धर्म के पूरे रिलीजन को आपको आपके साथ लेना चाहिए था, तो आपने विरोध किया। तो क्या देश हित में जो भी आते हैं आप तुष्टीकरण के मार्ग अपना के वो देश हित में डिसीजन ढंग से नहीं लेते पांडे जी? मेरे समझ में नहीं आता कि धारा आर्टिकल 370 जहां खत्म हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, किसी अलायंस पार्टनर के साथ चुनाव नहीं लड़ रही। और देश हित, क्या बेरोजगारी बढ़ाना देश हित में है? क्या किसानों की समस्याओं को बढ़ाना, धान खाद की बोरी से 5 किलो चोरी करना, दाम बढ़ाना खाद की बोरी का, ये देश हित में है? क्या महंगाई बढ़ाना देश हित में है? क्या चाइना जिस तरीके से देश की सीमाओं के अंदर घुस रहा है, क्या वो देश हित में है? क्या अग्निवीर योजना देश हित में है? अगर इस तमाम मुद्दों पे हम मुखर हैं, हम लगातार बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है, देखिए चुनाव तो जीत और हार ये एक सिक्के के दो पहलू, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के वो लगातार जनता के बीच में रहेंगे और हम उसको लेके रहेंगे। लगातार जनता के साथ हम खड़े रहे हैं और जनता के बीच में रहेंगे और लगातार इन मुद्दों पे बात भी करते रहेंगे। पांडे जी, अगर मान लीजिए पांडे जी आपने जो कुछ कहा है उसमें कोई डिस्प्यूट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो आपने कहा है उसमें कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी अकेले 325 सीट लेकर के वापस आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन हैं वो कहां पर गलती कर रहे हैं? अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो नहीं, मैं बिल्कुल आपके सवाल से सहमत हूं कि अगर इस तरीके के परिणाम आए तो 2-3 मुद्दों पे विचार करने की जरूरत है। यह माना जाएगा कि हमारी कनेक्टिविटी कहीं कहीं कमजोर रही पब्लिक से, हम पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ रहे। दूसरी बात यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी सही तरीके से परोस के उसकी कनेक्टिविटी अच्छी थी तो अपनी गलत नीतियों को, या ये कहिए कि जो जन विरोधी नीतियां थी उस पर भी पर्दा डाल करके वो मुजरा और हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान और मुस्लिम तुष्टीकरण की तमाम योजनाओं को वो जनता तक पहुंचा करके जनता का वोट लेने में सफल रहे हैं। और विपक्ष की कनेक्टिविटी कमजोर होने के नाते विपक्ष सही मुद्दों को भी जनता तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए विपक्ष चुनाव हार गया। इस बात को स्वीकार करना पड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगली बार उत्तर प्रदेश के जब असेंबली इलेक्शन होंगे फिर आपको भी मंदिर मंदिर जाना पड़ेगा, दरगाह जाना पड़ेगा। मतलब ये करना पड़ेगा और क्या? मतलब यही हो गया ना सर। मैं मेरी समझ के बाहर है। अगर इतनी बेरोजगारी के बावजूद बीजेपी 330 सीट लेकर के आ जाती है तो फिर क्या है, बताइए ना सर। मैं आपको बता रहा हूं कि मंदिर जाने का सवाल नहीं है। मैं तो लगातार एक बात कहता रहा हूं कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, गुरुद्वारा जाना धर्म व्यक्ति का निजी विषय है और धर्म हर व्यक्ति को स्वतंत्रता इस देश के अंदर कि वो जिस धर्म को चाहे स्वीकार करे, जिस धर्म के साथ रहना चाहे उस धर्म के साथ रहे। लेकिन अब धर्म का जिस तरीके से बाजारीकरण हो रहा है, जिस तरीके से धर्म का व्यापार हो रहा है, जिस तरीके से ध्यान लगाने की भी मार्केटिंग हो रही है, ये राजनीति के लिए ठीक नहीं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि ये देश खुशहाल हो, इस देश का नौजवान खुशहाल हो, इस देश का बेरोजगार खुशहाल हो, इस देश का किसान खुशहाल हो, इस देश का व्यापारी खुशहाल हो। और जब सभी खुशहाल होंगे, सभी वर्गों और धर्मों के लोग खुशहाल होंगे, तब ये देश आंतरिक रूप से मजबूत होगा। और जब देश आंतरिक रूप से मजबूत होगा तो देश की जो ताकत बनेगी वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत गिरा जाए। पांडे जी, ये तो आपने बात कही जो होना चाहिए, लेकिन जो
जो है उसका क्या, चलिए मान लीजिए आप जीत जाते हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो क्या है कि अगर मैं कहता हूं अगर जीतते भी नहीं हैं, फिर भी अगर इंडिया अलायंस की 200 सीटों के आसपास आ जाती हैं, 200, 210, 220 भी आ जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो धर्माधिकरण है पूरे राजनीति का वो नहीं हुआ है अभी तक। बहुत लोग हैं जो बड़े सेंसिबल लोग हैं, अकल वाले लोग हैं, जो बिल्कुल बिलीव करते हैं संविधान में, वो हुआ है। और अगर मान लीजिए नहीं होता है तो फिर तो मतलब या तो आप फिर राजनीति छोड़ दीजिए या हम पत्रकारिता छोड़ देते हैं, मतलब क्या करेंगे फिर उसके बाद? सीधी बात है, मतलब क्या करेंगे सर उसके बाद? तो हम भी वो क्या है, वो साधु महात्मा बन जाते हैं, आश्रम खोल लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं। आप भी कुछ ऐसा कर लीजिए, क्योंकि और तो कुछ चल नहीं रहा है इस देश में। मेरी समझ के बारे सर। नहीं, ना आपको साधु बनने की जरूरत है, ना हमको राजनीति छोड़ने की जरूरत है। हमारी आपकी वो जिम्मेदारी है, ये देश की जनता है, जनता जनार्दन है। जनता अगर कभी गलत फैसलों के भी साथ चली जाए तो जनहित के मुद्दों पर लड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम उन किसानों को, उन बेरोजगारों को, उन नौजवानों को, उन महिलाओं को नहीं छोड़ सकते जिनके साथ इस देश के अंदर अन्याय हो रहा है। फैसले कुछ भी हो, हमें उनकी लड़ाई लड़नी है और अंतिम दम तक रवि किशन करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी हम लड़े। रवि किशन पांडे जी, रवि किशन जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं डेवलपमेंट, जिस प्रकार का लहर लेके आया हूं, गोरखपुर में रिंग रोड लेके आया हूं, पूरे ओटीटी का प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस में गोरखपुर में लेके आया हूं, इसमें मोदी जी योगी का जबरदस्त कॉपरेशन है, जहां भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दोनों तन मन धन से मदद कर रहे हैं। रवि किशन जी का कहना है कि जिस प्रकार से यूपी का एक लहर है, और ये लहर सिर्फ गोरखपुर में नहीं है, पूरे यूपी में है। तो रवि किशन जिस प्रकार से कह रहा है कि योगी मोदी, मोदी योगी, जिस प्रकार से डेवलपमेंट पे पूरे 24/7 इसमें इन्वॉल्व है, आप इसको कैसे स्टेटमेंट किया? पूरे यूपी में वो हाल है रवि किशन का स्टेटमेंट। देखिए, रवि किशन की किसी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर सवाल का उनके पास एक जवाब है, हर हर महादेव। जब कोई सवाल पूछिए, कोई किसी पत्रकार ने पूछा कि एक महिला और एक बिटिया कह रही है कि वो आपकी पत्नी है और बेटी कह रही है आप उसके पिता है, कल हर हर महादेव। पब्लिक समस्या बताएगी तो कहेंगे हर हर महादेव। तो रवि किशन जी जो बात याद कर लिए हैं, रिंग रोड आ रहा है, रिंग रोड आज तक तो गोरखपुर में शुरू नहीं हुआ कहीं बनना। गोरखपुर में जब बरसात का सीजन 15-20 दिन बाद शुरू होगा तो बुरी तरह जल जमाव होता है, बुरी तरह जल जमाव होता है, घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। अभी उस पे 100% काम इस सरकार नहीं कर पाई, 7 साल से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैंने कहा ना कि हम लोगों की कनेक्टिविटी कमजोर है। अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारी कनेक्टिविटी कमजोर है, हम पब्लिक तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं हम अपनी बात जी। लेकिन पांडे जी, इस बार तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद है कि आपके खुद के जो प्रोजेक्शन हैं शायद वही सच होंगे, मुझको ऐसा लगता है। क्योंकि हर जगह पे ये देखा गया कि पब्लिक ने चुनाव अपने हाथ में लिया, हर जगह पे पब्लिक खुद उमड़ के गई, खुद लोगों ने वोट दिया, सब कुछ किया। मुझको ऐसा लगता है कि लोगों ने खुद ने ये तय किया है कि इस बार हम लोग ये करेंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। मतलब ये रिजल्ट देख करके, एग्जिट पोल देख करके, मैंने पहले कहा इस बात को, एक ही पोलिंग सेंटर के अगर 2 बूथों पे आप चलिए तो एक बूथ पे मतदाताओं से अगर आप बात करेंगे तो किसी दूसरी विचारधारा के साथ जाएगा, उसी के बगल वाले बूथ पे आप बात करेंगे, हो सकता है उसकी विचारधारा दूसरे के साथ हो। ये जो सबसे बड़ा परसेप्शन बनाया जा रहा ना कि ये जो सर्वेज है ये केवल एक गुमराह करने की प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की प्रक्रिया। और हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया अलायंस के गठबंधन में जो सीटें बताई गई उससे कम सीट 4 जून को इंडिया गठबंधन का नहीं आएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब मिनिमम 295 सीट।
जी क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हम लोग आपको मुबारकबाद देंगे 4 जून को। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल गोरखपुर से। बिल्कुल 4 जून को मैं आपके साथ फिर रहूंगा क्या बात जी, और 4 जून को पुनः वार्ता होगी। क्या बात है सर। और 4 जून को मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में ही जो आपकी प्रोजेक्शन है, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट करी है कि इतनी सीटें आएंगी आपको और कांग्रेस को मिला करके, जी उसमें अगर 5-10 नीचे भी हो जाएं, अगर उतनी भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट विल बी ग्रेट, इट विल बी रियली एंड ट्रूली अ वंडरफुल अचीवमेंट। इट इज नॉट एज इफ आई एम अगेंस्ट मिस्टर मोदी, बट ऑल आई एम सेइंग इज जो भी होना चाहिए सर, ऐसे होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बोथ साइड्स हैव टू बी स्ट्रांग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष जो है वो इतना ताकतवर हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए कि अपनी मनमानी करना शुरू कर दे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान में जब भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हुई है, जहां पर दोनों पक्षों की बात सुनी गई है। बिल्कुल सर, ये ऐसा मेरा मानना है सर। अब पता नहीं इसके बारे में आप क्या सोचते बिल्कुल। हैं? जब कोई व्यक्ति एक तरीके से लगातार उसको ताकत मिलती जाएगी जी, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि व्यक्ति तानाशाही की तरफ जाएगा। और मैंने कहा ना, अब चूंकि मुद्दों का वक्त नहीं है, मुद्दों पे चर्चा करने का वक्त नहीं है, अब तो अनुमान आ रहे हैं, सरकार की संभावनाएं बताई जा रही हैं, 4 जून को परिणाम आने हैं। लेकिन जिन लोगों को इस देश से भ्रष्टाचारी कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनको भ्रष्टाचारी बताया था, वो सब दोस्त है मोदी जी के। जो मोदी जी के साथ है वो सब सुरक्षित है, जो खिलाफ है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई अन्य नेता हो, सब जेल के सलाखों पे। तो इन सब मुद्दों के बाद भी अगर इस तरीके की स्थिति है तो फिर इन एनी इवेंट सर, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे नहीं लगता कि ये जो केजरीवाल जी बता रहे हैं, बाकी सब लोग बता रहे हैं कि रशिया जैसी सिचुएशन हो जाएगी, वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता सर। हिंदुस्तानी आदमी जो है, इंसान जो है, बहुत अकल वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो संविधान से खिलवाड़ करेगा। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू। Right, I can, looking at the results of Punjab and looking at the results of Delhi, which have come out, Yes, sir. that's where my faith in these exit polls has gone for a toss, very frankly. Because this is ridiculous, come on. I mean, nobody is going to believe. Nobody can believe that Punjab will fare so badly where Aam Aadmi Party is concerned, and Delhi will fare so badly where Aam Aadmi Party is concerned. And the Congress as well. Exactly. So if you're saying that the BJP is sweeping Delhi and getting all 7 seats, Then, I mean, there are a lot of things to be. then maybe people are right. I don't know which election I am watching. I don't know which election you're watching, Pradeep ji. Bilkul. Maybe we should change our profession. Maybe we should go into something else. Exactly. Well, in any event, we shall know all that very, very shortly. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को चुनाव खत्म हो चुके हैं। भारत के सबसे बड़े उत्सव की सफलतापूर्ण संपन्नता की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। 4 जून को उसका परिणाम आ जाएगा, मालूम पड़ेगा कौन कहां पर है। We'll also come to know, so will you, and that's just about it. We'll of course be here, we'll of course be talking again and again and again about issues that really concern everybody, including the biggest issue which concerns all of us. We want to focus on that, which is the heat wave and the environment, and we'll be focusing more on that in the days and weeks to come. But that's just about it from both Pradeep ji and myself. Please subscribe to the channel. अभी छोटी सी घंटी बजी थी, अब बज गई ठीक तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये कहना है प्रदीप जी, सरकार जो मर्जी आए, मुंबई शहर में जो 4 नदियां, उनमें से जो जा रहा है वो पूरा जहर मुंबई शहर में फैलाती हुई जाएंगी, और अभी भी जा रही हैं। और जिस जगह पर जहर बहता है वहां पर जहर ही पैदा होगा साहब। एक चीज याद रख लीजिए, बड़ी पुरानी कहावत है, जहर और अमृत को, यानी अमृत इज क्लीन वाटर एंड जहर इज सीवर वाटर, सीवेज वाटर, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाता कभी भी। That has been a tradition in India. It's a 10,000-year-old tradition. I hope we are able to go back to that. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.
जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।